जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इंटेलिजेंस इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एट द वेरी आउटसेट आई शेयर अ शॉर्ट वीडियो जी, so that we can continue our discussion about this very important and hot topic. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide. ये सर, ये हमारे टॉपिक्स हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है जी? और इसके अलावा कुछ देर बाद मैं चैट बॉक्स को भी देखता रहूँगा। तो चैट बॉक्स भी सारे इंटरेक्शन का एक सोर्स है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। और उसमें ज़ाहिर है आप अनम्यूट हो के बात कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी आप लिख कर
लिखने में कंफर्टेबल है तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ले साहब, ये हमारे कंटेंट्स हैं जी। इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले वाई को एड्रेस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो क्वेश्चन है, बल्कि यहाँ मुझे याद आ रहा है कि साइंटिफिक राइटिंग या जो टेक्निकल राइटिंग है, उसमें हम 5 जर्नलिस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और उसमें चैट बॉक्स में इवन खोलना चाहूँगा कि हम बात करते हैं 5 Ws की। तो कोई कोई कोलीग बताएगा कि 5 Ws क्या होते हैं? चैट बॉक्स मैंने खोला है जी सिर्फ इसीलिए, फिर आप लिख के शेयर करना चाहें। मीनवाइल मैं आगे कंटेंट शेयर करता हूँ। बट ये है कि 5 Ws क्या है। तो ज़रा उन 5 Ws में से एक जी वाई भी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक राइटिंग में। और उसके अलावा भी जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, उसमें वाई वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिजिटल इंटेलिजेंस की हम बात क्यों करें, इसकी ज़रूरत क्या है, देन डेवलप कैसे किया जाए डिजिटल माइंडसेट, कुछ टाइम हम इस पर स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। देन कम्स डेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेटा को न्यू ऑयल कहा गया। आज के दौर का जो न्यू ऑयल है वो डेटा है। और आखिरी जो सेक्शन होगा कि जो डिजिटल अपॉर्चुनिटीज हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उनको कैसे कैपिटलाइज करें। तो आई एम श्योर ये हमारा रोड मैप है जो इंशाल्लाह ताला आज अ, ये नशिस्त में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ले सर, सबसे पहले जी वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डिजिटल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम एंड एज। तो कुछ टाइम हम डेडिकेट करते हैं इस वाई के आंसर को। लेकिन जी लोग हमें ज़रा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं अगेन आप लोगों का मशहूर हूँ कि इस तरह वीकेंड पे और 23 मार्च वाले दिन हम्म, आप लोग हमारे साथ यहाँ शामिल हैं। और फिर मैं इस चीज़ को रीआइट्रेट करता चलूँ कि अगर ये डिस्कनेक्ट होगा 40 मिनट बाद, तो हम इसी जूम के लिंक को यूज़ करके दोबारा इसी चैट रूम में एंटर हो जाएंगे। और हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ये चलती रहेगी। लीजिए सर, ट्रिविया या फन फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कहा गया कि डेटा जो है ना इज द न्यू ऑयल। तो यहाँ मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं स्लाइड्स को पढ़ने को इंतहाई गैर महज़्ज़ब जानता हूँ, बट नोइंगली। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बातें जिन्हें पढ़ा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। तो यहाँ सर, दुनिया की आबादी अगर 8 अरब भी है लम्हाए मौजूद में, तो उसमें से इतने अफराद, जो तकरीबन 60% बनता है मुकम्मल पॉपुलेशन का, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहली तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट कर रखा है। रमज़ान मुबारक चल रहा है और यहाँ मैं लाहौर में मौजूद हूँ। और आप लोगों के साथ, आप अपने अपने घरों में अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं या लेटे हुए हैं, आपके साथ बात हो रही है। तो बहरहाल एवरेज जो यूज़र है वो दिन के 7 घंटे ऑनलाइन स्पेंड करता है। ये करंट ट्रेंड है। इंसान अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त आजकल, वो इंसान पहले 8 घंटे काम करता था जी, वो ना उस 8 घंटे ना ऑनलाइन ही रहता है। तो ये भी ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, ठीक होगी बात जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज की डिजिटल एज है जी,
उसमें ये सुबह ही मैंने सहरी के वक्त ये कोटेशन ऐड की कि, और बड़ी यानी कि लैंडमार्क कोटेशन है जी, कि इसने मुझे भी झंझोड़ा है और अभी वीडियो में भी बात की कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में दो ही बातें हैं, कि या तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, जिस तरह के इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ या आप महसूस कर रहे होंगे कि हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 23 मार्च वाले दिन बात कर रहे हैं, कि जबकि 23 मार्च 1940 को लाहौर में हमने मंटो पार्क में हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा फैसला किया, बड़ा काम किया, जो उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनतें आज हम फल खा रहे हैं। तो आज 23 मार्च 2024 को हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि ये एक नवा अब चैलेंज है आज के इंसान को, आज के पाकिस्तानियों को, आज के इन लोगों को। वो क्या है कि अगले 10 साल में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी कि जितनी पिछले 100 साल में इकट्ठी हुई है। ठीक है जी। यानी कि सन 1924 से लेके सन 2024 तक जितनी प्रोग्रेस हमने देखी, हम सवाल करते रहे। ये सबसे बड़ी, किसी ने उसे चैट बॉक्स में 5 W का जवाब दिया? किसी ने भी नहीं दिया। चले कोई बात नहीं, कहते हैं खामोशी भी जवाब ही होता है। तो बहरहाल जी, 5 W जो है ना, जर्नलिस्ट क्वेश्चंस हैं, लिख देता हूँ। तो, बड़ी जो इजादात हुई उसमें, अगर मैं आपसे यहाँ फिर पूछ लूँ कि कोई एक बड़ी इन्वेंशन आप बताएं कि जो सन 2024 से पहले 1924 के दरमियान वाले 100 साल में हुई, तो कोई कोलीग जवाब देगा? कोई हमारा ट्रेनी पार्टिसिपेंट? फिर आगे मैं, मीनवाइल आप ये स्लाइड देख रहे हैं मेरे साथ, तो अल्लाह आपका भला करे, ये स्लाइड पे जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो बताए गए हैं कि वो कौन से टॉप 10 ट्रेंड्स हैं जो अगले, जाहिर है, इन 10 सालों में हमारी जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी, सवाल वही था कि सबसे बड़ी जो इजादात है उनमें से कोई एक आध बताइएगा। 23 मार्च सन 2024 की सुबह में हम डिजिटल रेवोल्यूशन की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डिजिटल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज मैं मशकूर हूँ जी के एनसीबीए की टीम का, डॉक्टर अली साजिद का स्पेशली, कि उन्होंने इस टॉपिक पे बात करने का हमें मौका दिया। और ये सारे इस बात की दलालत करता है कि ये इट्स सेल्फ कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि जो लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, उन्हें रोबोट्स तो रिप्लेस नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं करेगी। उन लोगों को, उन दोस्तों को वो कोलीग्स रिप्लेस कर देंगे जो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाँ जी। पिछले 100 साल में कोई एक दो बड़ी इजादात ही बता दें पाकिस्तानी बहनों थे, भाइयों। चैट बॉक्स में मैं थोड़ी देर बाद छाती डाल लेता हूँ, बल्कि मैंने ये व्हाट्सएप भी खोल के रखा होता है, ये कोई पता नहीं होता कि कोई कोलीग वहां पे इस वक्त हमारे साथ एंगेज हो। हाँ जी। कोई बड़ी इन्वेंशन जी पिछले 100 साल में, किसी को भी कुछ नहीं पता, सारे मेरी तरह ही हैं, या बात ही नहीं करना चाह रहे, एंगेज ही नहीं होना चाह रहे। आप लोग यहाँ इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं, तो हमारा
हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप एंगेज होना चाह रहे हैं। तो बहरहाल सर, बड़ी जो इजादात हैं उनमें ज़ाहिर है एटम बम से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन और माइक्रो प्रोसेसर तक और इंटरनेट तक हम आन पहुंचे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन टॉप 10 जो ट्रेंड्स हैं उनमें ये देखें कि एक दो बड़े प्रवेश हैं। मसलन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर फील्ड को टच कर रही है, ठीक है ना, चाहे फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, टेलीकॉम। जितने ये फील्ड्स हैं, कितने फील्ड हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है जी। अनेबलर सेक्टर्स, इंडस्ट्री 4.0 सेक्टर उन्होंने कहा, मोबिलिटी और हेल्थ केयर, सारे सेक्टर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो टच कर रही। तो इसका मतलब हुआ कि ये वो तलवार है। एक तलवार तो वक्त है जो हम सबको काट रही है, तो आज की नई तलवार जो आ गई है सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सिमिलरली जो प्रोग्रामिंग है। तो बहरहाल इस शो में इस चीज का सिर्फ देखें कि ये जो वो ट्रेंड्स हैं, टेक ट्रेंड्स हैं, जो कि हर फील्ड को, अ, तमाम सेक्टर्स को टच कर रहे हैं। मेरी सर आवाज सुनाई दे रही है ना? कि मेरा एक अंदाजा क्याफा है कि कैमरे में मेरी तस्वीर नजर आ रही है, तो सिमिलरली मेरी आवाज भी सुनाई दे रही होगी। तो बहरहाल जी, जो टेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक बज़वर्ड नहीं है सिर्फ, ये वो हकीकत है जो दीवार पे लिखी हुई है। इट इज रिटन ऑन द वॉल। तो ये आज हर छोटे बड़े, बल्कि छोटा बड़ा भी क्या कहिए, हर मर्दो जन और हर बंदे को ये इस टॉपिक पे एंगेज होना है। अच्छा सर, तो आप सर, टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है हम बार बार इसी का जिक्र कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स का। तो इस हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि सर लोग आजकल सामने बात कोई नहीं करते। एक कमरे में लोग बैठे होते हैं, वो आपस में बात कोई नहीं करते। वो कैसे एंगेज होते हैं? वो सर 85% जो कम्युनिकेशन है वो यूं ही हो रही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि आप अपने घर में बैठे हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन के साथ हैं, और मैं अपना लैपटॉप उसके कैमरा में देख ही जा रहा हूँ और बस जूम कर रहा हूँ कि मेरी तरह कुछ और भी सर फिरे हैं जिन्हें हालातों वाकयात ने मजबूर कर रखा है कि वो चाहते हैं कि वो ड्रिवन ना हो, वो बैक सीट पे ना बैठे, वो ड्राइवर सीट पे बैठे। तो ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए वो इस टॉपिक पे रोजा रख के 23 मार्च वाले दिन परेड देखते हुए वो यहाँ बातें कर रहे हैं। तो सर 85% जो कम्युनिकेशन है वो एक कमरे में मौजूद जो लोग हैं, जो बताया जा रहा है कि 120 फुट की दूरी पर भी शायद हैं, तो वो डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद कोरोना वायरस ने पिछले सालों में चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जो नई कंपनीज आ रही हैं वो पहले दिन ही डिजिटल है। लेकिन आज का जो बच्चा है वो पहले दिन ही जी डिजिटल माइंडसेट लेकर आ रहा है। तो बाकी नीचे मेरे रेफरेंसेस हैं, दे आर डाउनलोडेबल, तो आपने घबराना नहीं। ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर देंगे। मिस सारा हमारी होस्ट हैं, वो आपके साथ सर्टिफिकेट भी शेयर कर देंगी। जो टूल्स, जो जॉब एड्स हम यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो बस आपने घबराना नहीं, आपने बस सबसे पहले कहते हैं अपने लिए दुआ करनी चाहिए। जब भी हाथ उठाएं आप अपने वास्ते दुआ करें, उसके बाद हम मेरे लिए, मिस सारा के लिए, एनसीबीए के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें। तो बस घबराना नहीं।
ओके जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ सर ज़ाहिर है कुछ कोटेशंस भी आ जाती हैं। ठीक है जी। ये बल्कि चले, मैंने इसको अपनी तस्वीरों को हटाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि चलें वो कोटेशन अब आप भी मीनवेल पढ़ सकें। और क्वेश्चन ये होते हैं कि जी आप आजकल जब से आप वर्क फोर्स में एंटर हुए हैं तो आपको आप अपनी इंडस्ट्री में अगर फिर आपसे फिर वो देख रहे सवाल आन पड़ा। इस सवाल ही मेरे कोलीग ने कहा कि जवाब कम अहम होते हैं, कंपैरेटिवली सवाल अहम होते हैं। तो फिर सवाल आ गया भाई साहब, बहनों और भाइयों, सवाल ये आन पड़ा है कि आप अपनी इंडस्ट्री में, आप हेल्थ सेक्टर में हैं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, जिस भी जगह हैं आप, तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें आपको क्या सबसे बड़ी तब्दीली नजर आती है। तो यहाँ ये मौका होता है बात करने का, एंगेज होने का, कि तुसी दसो कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मीनवाइल साथ ही कोटेशन भी यही इस तरफ ही इशारा पॉइंट आउट कर रही है जी, कि पायरेसी जो है ना, बड़ा समझते हैं कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या चाइनीज को हम बड़ा वो ब्लेम दे रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वही इस तरफ बता रहे हैं कि पायरेसी कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है जी। और कॉलीग्स को भी मैं वेलकम कर लूँ साथ साथ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग के सीरियस टॉपिक को कई लोग उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो साथ साथ मैं लोगों को भी जरा जी एज अ मॉडरेटर, एज योर होस्ट राइट नाउ, वैसे तो हमारी होस्ट मिस सारा है जिन्होंने ये महफिल सजाई है, तो लेकिन करंटली ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ। तो जनाब अली, ये कोलीग्स को ज़ाहिर है जो एंटर होते हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं सर। तो सर पायरेसी कोई चैलेंज नहीं है इस वक्त, जो बड़ा चैलेंज है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कंटेंट जनरेट करते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, ये लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि पायरेसी कोई चैलेंज नहीं है, उन टेक्नोलॉजी चैलेंज है। ठीक है सर। चैट बॉक्स में मैंने देख लिया किसी कोलीग ने कुछ लिखा हो शायद। तो बहरहाल सर आगे चलते हैं। तो डिजिटल इंटेलिजेंस है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि डिजिटल इंटेलिजेंस है क्या। ये सर वो कैपेबिलिटीज हैं जो कि आज की दुनिया में मुझे आपको रेलेवेंट बनाएंगी। ठीक है सर। क्यों कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुजारिश की कि हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जितना हमने 100 साल में जितनी इनोवेशंस की, जितना हमने देखा इजादात और दरियाफ्तों का सैलाब, उतना उतनी इनोवेशन, उतनी इन्वेंशंस, उतनी डिस्कवरीज अगले 10 साल में हो जानी है। ठीक है। तो इतनी यानी कि वो अब चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा ये स्लाइड में हमें इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि डिजिटल इंटेलिजेंस को एक वे ऑफ वर्किंग समझें, कोई नॉलेज ना समझे, कोई दवाई को फकी ना समझे हैं जी, ये कोई शहरी अफतारी नहीं है जो भी हम कर लेंगे। ये एक आपकी, हम सबों की, ठीक है जी, जिंदगियों का एक अब हिस्सा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं या हम जिंदगी कर रहे हैं, तो ये डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस, ये भी हमारी जिंदगी है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फिर अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर ये है कि मुझे या आपको जो इन चीज़ों को की अहमियत का इदराक करना है, सेंसिटाइज करना है इन चीज़ों से,
और अपना अपना काम जिस भी हम सेक्टर में है वहाँ एफिशिएंटली करना है। और फिर आखिरी बात मुझे बड़े मजे की है, इस रात को भी लग रही थी, कल परसों भी से देखते हुए, कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, उन्हें अच्छे तरीके से सर्व करना है, उनके नजदीक आना है। हाँ जी। इस तरह करके ना, मैं कैमरे में आपको देख रहा हूँ, किस तरह विजुअलाइज मैं करूँ कि मैं एहसन रियाज साहब को इस वक्त देख रहा हूँ, बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, कि यार एहसन रियाज को भी डिजिटल इंटेलिजेंस ने और मशीन लर्निंग ने उतना ही मुतासर और अंगेज कर रखा है जितना आजकल मैं हूँ। तो इसका मतलब है एहसन रियाज का और बाकी अहबाब भी जो मौजूद हैं, उन सब का और मेरा ये मुश्तरका इस वक्त पेन पॉइंट है। तो यहाँ सर एक और वीडियो देखते हैं। जाहिर है ये इन्फोग्राफिक्स डॉक्टर अली साजिद कहते हैं, ये आईजी बनाओ, ट्रेनिंग करवानी है या जो भी, तो मीम्स का दौर है, इन्फोग्राफिक्स का दौर है। तो सर एक और वीडियो देखते हैं। और इस जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन की बात हो रही है कि दो ही गल्ला ने, या तो अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और लोगों को बताएंगे यार मशीन लर्निंग क्या है, हम अपने फील्ड में कैसे इसे यूज करेंगे, और या फिर दूसरी सूरत क्या है कि कोई और आएगा और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ होगा कि भाईजान आप यूं कीजिए। तो दो ही सूरतें हैं जी, या तो आप बताने वाले बन जाएं या फिर आप सुनने वाले बन जाएं। लें जी, एक और इंफोग्राफिक्स देखते हैं मिलकर। तो मैं बार बार इसलिए पूछ लेता हूँ जी, ताकि मुझे याद रहे कि आप को वीडियो नज़र आ रही है और जो है वो विजिबल है और वो ऑडिबल है। लें जी, मिलकर देखते हैं सर। हाँ, सुबहान अल्लाह जी। रिसर्चर ने भी हमें सवाल ही किया है, वीडियो का, इंफोग्राफी का, एंड भी ये क्वेश्चन पे ही हुआ है। ठीक है जी, डिजिटल डिस्ट्रप्शन वो तब्दीली है जो सर आ नहीं रही, आ चुकी है, और इसके लिए आप बस तैयार हो जाए। ले सर, तो बताया जा रहा है कि अपने डिजिटल जो इंटेलिजेंस स्किल्स हैं उन्हें कैसे होन करें, कैसे तैयार करें। पहला मशवरा दिया जा रहा है जी कि एक डिजिटल माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट करें। इंशाल्लाह ताला इसका जिक्र होता है जी तफसील के साथ। डिजिटल कल्चर को अपने इर्द गिर्द, अपनी टीम में इनकलकेट करें। जो डेटा है वो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हैंडलिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी समझना सीखना ज़रूरी है। इसकी भी बात होगी इंशाल्लाह ताला। और देन कम्स कि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। माजरत जी, मेरा ज़रा थोड़ा गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम की भी कैफियत है। अच्छा सर, तो अब यहाँ फिर एक सवाल है कि जी अगर ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है, ठीक है, लेकिन फिर कोई बच्चा, कोई कॉलीग तो ये सवाल कर सकता है ना कि ये चीज़ें मुझसे रेलेवेंट भी हैं। हो सकता है आपसे हो, दूसरे लोगों से हो, मुझसे ना हो। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, ठीक है जी, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस इस पे अब डिपेंडेंट है। वो तभी अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाएगा, उनकी नीड्स को एड्रेस कर पाएगा, कि वो अगर ये स्किल सेटअप एक्वायर करेगा। और अच्छी बात ये है कि अगर आप ये इन टॉपिक्स पे अपने आप को सेंसिटाइज करेंगे, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग को समझेंगे, डेटा एनालिटिक्स की बातें करेंगे, तो साहब ये न सिर्फ सेटिस्फाइंग है बल्कि फन भी है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो आज के दौर में इस वक्त रेलेवेंट है। तो ज़रा जब रेलिवेंट चीज़ों की आप बात करेंगे तो
अच्छा लगता है कि यार मैं फिर ड्राइविंग सीट पे हूँ। लें जी, अली सलमान साहब को दोबारा हम वेलकम करते हैं। अगले आइडिया देखते हैं जी कि लें जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो कवर किया साहब, इंट्रोडक्शन। तो हमने थोड़ा सा चलें, अपने आप को सेंसिटाइज किया, और ये जो क्वेश्चन था वाई, उसके आंसर को रिप्लाई करने की कोशिश की है। कि जैसा मुझे ख्याल आया कि वक्त तलवार है, बताया हमारे बुजुर्गों ने, और हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हम सबको काट रही है। तो आज जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा नवे दौर की तलवार है जो हम सबको काट रही है। तो अब ये हमारी वो है समझदारी कि हम कोशिश करें कि हम जो है वो ड्राइवर बने टेक्नोलॉजी का, इससे जो है वो पुश ना हो रहे हो। तो यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज़ भी सुनी कि अगर हम इन चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज होएंगे, पढ़ेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, 23 मार्च वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी हम अपने आप को इंगेज करेंगे इस संजीदा मौजू पे, तो फिर हमें ज़ाहिर है एक अंदर से एक अच्छा लगेगा कि यार रोज़ा रख के, और जो है मैंने एक संजीदा टॉपिक को, करंट टॉपिक को सुना, पढ़ा, और उसको, उसकी कॉन्वर्सेशन का मैं हिस्सा बना। ठीक हो गया जी। ले सर, अब सर थोड़ी बातें करते हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। जहां तक भी मैं आपकी तवज्जो का बड़ा मशकूर हूँ। मैं थोड़ी देर बाद देखे ना, चैट बॉक्स में भी देख लेता हूँ ये कौन आया कौन चला गया। वो आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, घर का यही होता है ना जी, उधर आता है कोई जाता है मेहमान, और फिर आपसे एंगेज होते हैं, कोई कोई सवाल कर रहा है, कोई बात हो रही है। तो सर अब हम बात करते हैं कुछ देर कि जो डिजिटल माइंड सेट है ये कैसे डेवलप करें। तो सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज जो है वो नहीं हमें चाहिए, हमें एक डिजिटल माइंड सेट डेवलप करना है। यहाँ एक चलें करंट एग्जांपल बात कर लो, फिर अली सलमान साहब को हम वेलकम करते हैं। कि फरवरी सन 2009 को वो वाकया हुआ जी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रॉट। तो वो बड़ा उसमें फिर जिक्र हुआ, हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रफाल की बड़ी जरूरत महसूस हुई। तो रफाल की और नवी टेक्नोलॉजी की नो डाउट बड़ी अहमियत है। लेकिन हमने पिछले दिनों टॉप गन फिल्म ही देखी, उसमें भी उन्होंने यही इस आइडिया को ही एम्फेसाइज किया। एक ही साइड आइडिया को एम्फेसाइज किया कि इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट। तो ड्राइवर की बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो पायलट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हर दौर में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पायलट इम्पोर्टेंट था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी, अब भी जो भी मार्का लड़ा जाएगा ना, फसाई मार्का या कोई भी मार्का, उसमें ड्राइवर की इम्पोर्टेंस रहेगी। मैन बिहाइंड द गन, माइंड ओवर मैटर है जी। तो मिलकर एक और जी छोटा सा इंफोग्राफिक आईची देखते हैं, और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। मीनवाइल जो लोग ज्वाइन दोबारा कर रहे हैं मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। और इस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा सारी खूबसूरती वो आप लोगों की वजह से। नहीं तो अकेला बैठा तो मैं यहाँ इस कैमरे को ही सिर्फ देख रहा हूँ, प्यार से मोहब्बत से हैं जी। और समझ रहा हूँ कि 23 मार्च को परेड तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हम एक नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ले सर, ये ले सर, दोबारा एक्सपर्ट ने भी, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि बदेसी जुबान में और एक अ, हमारे आकाओं की जुबान में बात की, क्योंकि ये भी अब थिंकिंग पुरानी हो जाएगी। करंट थिंकिंग ये कहती है कि साजिद इकबाल और बाकी क्या नाम है, सेठ उमर साहब भी मेरे साथ, और जो भी नुमान साहब का मुझे नाम नजर आ रहा है, उनकी फोटो भी नुमान साहब की नजर आ रही है,
कि ये बदेसी जुबान नहीं, ये आज की जुबान है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में भी या कहीं भी कहो लोग अच्छी उर्दू बोलें, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी भी बोलें और अंग्रेजी को भी पढ़ा जाए। तो ये बकौल अनवर मसूद के सिर्फ वो मजमून नहीं है जो हमने इस सिर्फ इसलिए अपने कुरिकुलम का हिस्सा बना रखे है कि हमारे बच्चे बच्चियां हमारे स्टूडेंट्स फेल हों। कोई एक मजमून होना चाहिए कि लोग फेल हों। बार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल माइंडसेट के लिए तैयारी की जाए और अपने आप को सेंसिटाइज किया जाए कि यार ये एक थिंकिंग है, ये इन टूल्स को, इन टेक्नोलॉजीज को सीखना है, इन्हें पढ़ना है। क्योंकि अदरवाइज बात वही है जो कुछ अरसा पहले वो, अल्लाह हयाती करे, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, और क्या नाम है, अफजल चांद साहब, हमारे बड़े कोहना मश्क पॉलिटिशियन, सियासतदान, जब भी आते हैं मैं उन्हें देखता हूँ कभी। हाँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जो उन्होंने कहा था ना, मुख्तारिया गल वध गई, तो ये वही है कि गल बड़ी वध गई है। ठीक है जी, मुख्तारे को, आज के मुख्तारे को हमें बताना है कि गल वध गई है, उठ जा, कि कोई थोड़ी जी ना मशीन लर्निंग पढ़ ले। अच्छा, ले सर, तो फिर डिजिटल माइंडसेट कैसे सर ये कि मैंने हमने करना है, पहले अपने आप में लेकर आना है इस चीज को, और फिर अपनी टीम पर भी। तो उसके लिए ज़ाहिर है कहा जा रहा है तीन बातें, तीन खूबियां पैदा करें। कैसी मजे की बात है जी। पहली खूबी, पहला बिहेवियर ये है कि अपने दोस्तों में, अपनी टीम में जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है ना, उसकी एक्साइटमेंट पैदा करें कि यार ये कंटिन्यूस सफर है। वो जिसे इकबाल ने कहा ना, हयात ज़ौक़ सफर के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो लोगों ने परेड देख ली, थोड़ी देर में परेड भी मुक गई है। कई लोग सो रहे हैं, कई स्मार्ट्स को, जाहिर है ठीक है, रोजा रख के सोना भी चाहिए, परेड भी देखनी चाहिए, और मशीन लर्निंग की भी बात करनी चाहिए। दूसरी क्या है जी, दूसरी खूबी, दूसरा ट्रेट क्या है कि आप और आपकी टीम में ये खूबी हो कि हम डिसीजन मेकर बने, और हम अपने कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उन्हें सर्व करने के लिए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। हम नवा मोबाइल फोन लें, नवा लैपटॉप भी लें, लेकिन फिर हम उससे सीखें भी, उसमें नए नए टूल्स, नई नई एप्स, नए नए सॉफ्टवेयर हम उसमें, है जी। खाली लेके हम खुश ना हो। ठीक है, हो सकता है आपने कल ही नवा मोबाइल फोन लिया और आप बड़े खुश हो, अल्लाह आपकी खुशी को में इजाफा फरमाए। लेकिन ये है कि उसे फिर हाल ही आप ये ना कि रफाल की जरूरत बड़ी महसूस हुई, आप रफाल जो आपको अल्लाह ने दे रखा है उसे यूज तो करें। हमारे पास जो वक्त है, जो जिंदगी है, जो चीजें हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे। तो लोगों दी गड्डियां वेख वेख के हम परेशान होते रहते हैं, है नहीं कैसे। थर्ड है जी, एक आदत बना ले। ठीक है जी, कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आएंगी हम उनके बारे में जरूर नॉलेजेबल होंगे। वो वो जो मुनीर नियाजी ने कहा था ना, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, चाहे लाहौर होए साडा मुनीर, चाहे वो गुजरात जाए, चाहे वो इस्लामाबाद जाए, वो दाओ ही आलम होए। वो बंदे ने पूछा था ना, मैं अक्सर कह देता हूँ, एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा था, भाईजान पढ़े लिखे हो? तो दूसरे बंदे ने भन्ना कर जवाब दिया कि एवं सड़िया बलिया फिरना। तो पढ़े लिखे बंदे की भी निशानी ये जरा पुरानी हो गई है कि पुराने जमाने के पढ़े लिखे सड़े बले फिरते थे। आज के पढ़े लिखों को, सो कॉल्ड, वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा कर घूमना चाहिए। अच्छा सर, अगली स्लाइड पे देखते हैं जी कि अब ये जो लर्निंग है इसके बड़े बैरियर्स हैं क्या, ये लर्निंग हो क्यों नहीं पाती। ठीक है सर। तो उसमें बताया जा रहा है पहला बड़ा चैलेंज तो है ह्यूमन जो है ना, इंसान जो है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते।
अपने सोफे से, अपने मोहल्ले से, अपने अपने मुस्लिमगंज से, अपने रेलवे रो स्टेशन से बाहर निकलना बड़ा औखा है। पहला बड़ा चैलेंज ही है इनके। पहला बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि मेरे को ट्रेन नहीं है, मेरे को हवाई जहाज नहीं है, मेरे को गड्डी नहीं है। बड़ा चैलेंज क्या है? सोफे से उठना। ठीक है। तो साथ अब ये फिर आईजी आ गया है, इन्फोग्राफिक्स है जी। तो वो मिलकर देख लेते हैं कि थोड़ी देर अब बात होती है इस बैरियर को, इस माजरत जी, जरा गला मेरा खराब है तो नजला जुकाम की कुछ शिकायत है, तो उस वजह से थोड़ा चैलेंज है। तो यहाँ सर इन्फोग्राफिक आप मेरे साथ देख रहे हैं मिलकर कि सबसे पहले क्या करना है? अनलर्न करना है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, आप अनलर्न करें। आप भी करें, नुमान साहब की फोटो मुझे नजर आ रही है और मैं भी कर रहा हूँ। तो नुमान साहब को कैमरा में मैं जस्ट देख रहा हूँ कि मैं नुमान साहब को देख रहा हूँ इस वक्त। तो नुमान और मैं, साजिद और बाकी भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब पहले क्या करें? अनलर्न करें। उसके अलावा दूसरा स्टेप क्या है? रीथिंक करें। अगली स्लाइड पे इस पे जरा डिटेल में बात होती है। आपने घबराना नहीं है, बस मेरे साथ रहना है। तो आगे हम कुछ देर इस पे डेडिकेट करेंगे। और तीसरा प्रोसेस है रीलर्न करना। पुराने बिहेवियर, पुराने टूल्स, उन्हें छोड़ देना। या अगर आप पंजाबी मेरी तरह समझते हैं, पंजाबी हैं, तो फिर ये कि पुराने कुनालियां, पुराने भांडे भान देने हैं, नवे बर्तन लेकर आने हैं नए दौर के। ले सर, कुछ देर इस चीज को मजीद देखते हैं। मैं नौमान अहमद साहब को ये कभी सच्चे कभी खब्बे कर रहा हूँ ज़रा कुछ, ताकि स्लाइड आपको भी नजर आ रही हो, विजिबल हो। और एक वो थोड़ा सा लगे कि मैं अकेला जो है ना, सिर्फ कैमरा में नहीं देख रहा और स्लाइड्स को नहीं देख रहा। मेरे साथ मैं जूम कर रहा हूँ कि उमर साहब और नौमान साहब, बाकी जो ट्रेनीज हैं वो भी स्लाइड को भी देख रहे हैं और एक दूसरे को भी देख रहे हैं। तो सर अनलर्न करना क्या है? तो अनलर्न में जी पहली बात की जा रही है लेट गो ऑफ बिहेवियर्स और ओल्ड पास्ट पर्सपेक्टिव। जो चीजें दादा अबू के दौर में, अब्बा जी के दौर में जो चीजें थी, उन रवैयों को, उन ख्यालात को, उन नजरियात को अब छोड़ना है। बड़ा औखा काम है। कुफारे मक्का कुरैश के लिए भी था। उनके लिए बड़ा चैलेंज ये था, वो दादा अबू का मजहब छड़ दईए, वो दादा अबू ने छड़ दईए, किस तरह मुमकिन है? तो ये दादा अबू को छोड़ना, अब्बा जी का मजहब को छोड़ना बड़ा औखा है, बहुत औखा काम है। ये बड़े लोग ही थे जिन्होंने दादा के मजहब को छोड़ दिया। दूसरा क्या जी? रीथिंक करें। रीथिंक क्या है? कि नई जो आइडियाज हैं, नई जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में सोचें। क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया है वो अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज से बहुत रोकता है। वो हमें सोचने का मौका नहीं देता, टाइम नहीं देता। और तीसरा, जरा रीलर्न करें। न्यू जो मेंटल हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रीलर्न करें। तो पुरानी चीजों को छोड़ना है और नए चीजों को डिस्कस करना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है आज के नॉलेज को। तो यहाँ एक और वीडियो है जी, एक और इंफोग्राफिक्स मिलकर देखते हैं। मैं आपकी तवज्जो का बहुत मशहूर हूँ जी। इस संजीदा मौजू पे आप मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं। लें सर। हमने मिलकर इस वीडियो में देखा जी कि हम वो लर्निंग डॉट करें, वो हैबिट्स जो हमें आज के दौर में रेलेवेंट बनाए। ओके साहब, आगे सर नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ओवरकम बैरियर्स टू लर्निंग में रीथिंक को करने के लिए, स्टेप में से गुजरने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। अपने को वर्कर्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ
बात करने की, गुफ्तगू करने की, बामानी गुफ्तगू करने की जरूरत है और रिसर्च करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया हमें बदल रहा है, मिलकर लेकिन ये भी आईजी देख लेते हैं। ये हमें बदल रहा है, ये हमारे कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को बदल रहा है और पॉजिटिवली भी हमें चेंज कर रहा है और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर रहा है। हम जब भी कोई पोस्ट लगाते हैं, कोई तस्वीर, कोई अपडेट, स्टेटस लगाते हैं, हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं और अपने पर्सनल ब्रांड को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो हमारी लगाई हुई पोस्टें, हमारे स्टेटस अपडेट, हमारी फॉरवर्डिंग, हमारी जो शेयरिंग है, वो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है। हर हासो आम को अब ये बात पता है। ठीक है जी। तो ये हमारा फुटप्रिंट और हमारी पर्सनल ब्रांड को ये प्रमोट करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है जी। वो बात है जो हम सबको मालूम है, उसका जैसे एक रिफ्रेशर है। रीलर्न क्या है जी? कि नई चीजों को, नई अप्रोचेस को अपनी रूटीन में शामिल करें। ठीक है। और फिर ये अच्छी बात की जा रही है कि अगर बाज औक़ात आप नई अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी नई आदत नहीं बन पाती, आप दोबारा पुराने ही आदत पे, प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, तो ये भी नेचुरल है। सिर्फ कीजिए क्या कि ये नोटिस करें कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों एक नई आदत को अडॉप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे नाकामी क्यों हुई। तो ये भी एक लर्निंग होगी। लें सर, बैरियर्स को करने के लिए, अबूर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपकी खिदमत में गुजारिश की कि मैं स्लाइड्स को पढ़ना, अ, ये बंदा ऑडियंस की तरफ कांड कर ले और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड के बच्चों की तरह, बात अंडर के बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं आगाज में ही। तो लेकिन अक्सर जो अमूमन ऐसे ही होता है कि बच्चे और इवन बड़ी उम्र के लोग भी वो स्लाइड पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऑडियंस की तरफ कांड कर लेते हैं। तो बहरहाल सर, एग्जाम्पल्स हमारे इर्द गिर्द हैं कि हम अनलर्न करें, ये कदम उठाएं, फिर हम अगला स्टेप लें, रीथिंक भी करें, और फिर हम रीलर्न करें। तो पुराने जमाने में असातिज़ा क्या कहते थे? लर्न करें जी, लर्निंग करना ही होनी चाहिए। होंदा उस्ताद आज का जो एक्सपर्ट है बता रहा है, खाली लर्निंग नहीं करनी, अनलर्न करना है और फिर रीलर्न करना है। शायद मेरे हमसाये में जी कुछ ठोका ठाकी की आवाजें आ रही हैं, आपको भी आ रही होंगी, तो आपने बस उसके लिए आपसे माजरत, आपने घबराना नहीं, आपने फोकस इसी पे रखना है। ले सर, वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की कोटेशन भी मुझे जरा रेलिवेंट लगी, तो मैंने इसे हिस्सा बनाया इस ट्रेनिंग कंटेंट का। और साथ ये सवाल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बताएं, बाबर साहब का नाम मुझे सामने नजर आ रहा है, बाबर साहब बताएं या बाकी भी जो कोलीग्स हैं वो बताएं कि वो प्रैक्टिस या वो पर्सपेक्टिव को जो लगता है आपको कि वो चंद साल पहले तो बड़ा रेलेवेंट था, लेकिन आज नहीं है। तो वो क्या कोई अमल करेंगे, आप एक्शन लेंगे कि इस चेंज को की शुरुआत कर सकें। बाकी वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की कही हुई बात को मैं यहाँ बड़ा रेलेवेंट समझ रहा हूँ कि पहाड़ की चोटी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सफर करने वालों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उन्होंने अपने रास्ते पे चलना है। तो आपको, हम सबको अपना अपना प्लान बनाना है और उसे एक रास्ते पे चलते रहना। लें जी,
डिजिटल टूल्स को अडॉप्ट करें सही रीजंस के लिए, सही दरवाजे खोलें, सही रास्तों पर चलें। इसका क्या, एक ही रास्ते पर चलें। तो अपने कस्टमर, अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को फोकस करें, नए टूल्स को फोकस ना करें। हर आने वाला नवा टूल आपने नहीं यूज कर लेना, सारी फकियां नहीं खा लेंगे। ठीक है जी। सिर्फ रफाल की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना आपने। आपने जानना है कि आपकी, आपके कस्टमर की, आपकी टीम की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरतें हैं। तो एग्जांपल हैं जी, ये मैं ज़रा आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो वो आप अपने कंफर्ट में, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इन्हें देख लीजिएगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल जेसिका की भी है कि उसकी टीम क्या, डेनिस की टीम जो थी वो अपना कस्टमर बेस लूज कर रही थी, ये इनका पेन पॉइंट है, उनकी परेशानी है। जबकि जो जेसिका की टीम है वो अपने सिस्टम्स को अपडेट कर रही है, तो इसका अपना चैलेंज है। अब बाहर मेरी गली में कोई बंदा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, तो हर बंदा जी 23 मार्च मना रहा है अपने अपने तरीके से। ठीक है। तो मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर अली साजिद ने, मिस सारा ने, एनसीबीए वालों ने हमें मौका दिया इतने संजीदा मौजू पे बात करने का, कि हम लोग पुश नहीं होना चाहते, हम ड्रिवन नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे, हम लोगों को बता रहे हो भाईजान ये नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इन्हें यूज करें, नहीं तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे, रिडंडेंट आ जाएंगे, हो जाएंगे, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई पूछेगा नहीं आपको आप कौन है, किधर जा रहे हैं। तो इतने संजीदा मौजू पे हम अ, बात कर रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो का भी बड़ा ही मशकूर हूँ जी, कि अपने अपने कंफर्ट जोन से निकल कर हम इस हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ले जी, सवाल आ गया जी। अच्छा, सवाल ज़ाहिर है मैंने आपको स्लाइड्स तो शेयर कर भी की हैं, दिखाई हैं, वो सवाल वहाँ पे आपने पढ़ा भी है। तो मिलकर देख लेते हैं जी कि ये एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। ज़रा फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जब होते हैं या ऑनलाइन में भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। अब एक और मोहल्ले में से मेरा गुजर रहा है, तो ये भी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो बाल वहाँ मिसाल उन्होंने दी जेसिका की और डेनिस की, तो देख लेते हैं जवाब क्या है जी। ठीक है जी। तो जवाब में ही हमें वो थोड़ा मिल जाएगा कि बेसिकली एग्जांपल में क्या, कि डेनिस का जो था एग्जाम्पल, उसमें वो ज्यादा डिजिटल माइंडसेट है। तो जेसिका की मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जेसिका का वो सब जवाब ही नो से शुरू हो रहा है। तो मैं तो बड़ा सख्त नापसंद करता हूँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं, नापसंद करते हैं कि नो से बात ना करें, ना फनाई ना डालें। हमारे इर्द गिर्द कई लोग आपको मिलेंगे जिनका बात का आगाज ही नो से होता है। वो यहाँ से गल शुरू करते हैं, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है जी, मुझे तो बताया ही नहीं गया। तो शायद उन लोगों को वो एक शिकवा ही कर रहे होते हैं दूसरों से, इर्द गिर्द के लोगों से। तो अल्लाह उन पर भी रहम करे, हम सब ही शिकवा बड़ा अच्छा तरीके से करते हैं। इस फन के हम सब माशाल्लाह बड़े माहिर हैं। तो बहरहाल डेनिस को देखते हैं जी, डेनिस, और उसकी एग्जांपल यार अच्छी है ना, पॉजिटिव बात है, तो उसे मैं पढ़ूंगा कि लीडर्स लाइक डेनिस। ठीक है जी, यहाँ डेनिस की जगह आप अपना रखें। ये इस का नाम मुझे सामने मिस हमदा का नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले बाबर साहब का नाम नजर आ रहा था। तो जो जो भी कोलीग्स मौजूद हैं वो अपने आप को अजूम करें, विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि डेनिस की जगह वो है। तो जो डेनिस भाईजान है वो फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, कि पहला फोकस क्या है, आपके हालातों वाकयात, आपका बिजनेस। अच्छा, द पॉसिबिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग देयर टीम्स परफॉर्मेंस, और आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला हिस्सा है जी प्रॉब्लम का, ये स्टेप वन है, ये मिरेकल वन है। ठीक है, ये आपने कर लिया। तो फिर
They look for ways to simplify operations, help customers, have the experiences they want, and build collaborative relationships using technology. अच्छा लीडर वो है अच्छा लीडर वो है जो पहले अपने प्रॉब्लम को, अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को फोकस करे कि मैं लोगों की जिंदगियों में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, लोगों के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मतलब आजकल हमारी पंजाब हुकूमत लोगों के घरों में जा जा के वो एक सब्ज रंग का थैला उन्हें दे रही है। देखिए, मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ना तो मैं एक सियासतदान हूँ जी, कोई मेरा दावा नहीं है। मुझे तो घरेलू सियासत की समझ नहीं आती, ना मोहल्ले की, तो मेरा तो ज़हन ही बड़ा छोटा है जी। तो ना पॉलिटिक्स ना रिलीजन, तो मजहब का भी बिल्कुल मैं माहिर नहीं, मेरे पास बड़ा वाजबी साइल मैं मजहब के बारे में भी। लेकिन बहरहाल वो सिर्फ एक एग्जांपल मैं कोट करने के लिए जो रेलिवेंट है कि हमारी पंजाब हुकूमत आजकल हम पंजाबियों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए उनके दरवाजों पे जा रही है, उन्होंने सब्ज रंग का आटे का थैला दे रही है ताकि जो अवाम है उनके चेहरों पे खुशी आए, मुस्कुराहट आए। तो यूं आपको भी सोचना है कि जहां आप मौजूद हैं, मिस हामदा या मिस सोनिया मौजूद हैं, कि वहां उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनके चेहरों पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे खुशी और मुस्कुराहट लाई जा सकती है। ले सर, नेक्स्ट आइडिया देखते हैं जी। और राइट रीजंस की बात हो रही है कि आपने वो डिजिटल यूज करने हैं कि जो आपके मसलों को हल करें। ठीक है, आपने बनावट का, दिखावे का शिकार नहीं होना। ये जो डिजायर है ना, कि हर नया डिजिटल टूल या प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेगी, हम करेंगे, हर नई टेक्नोलॉजी हम ले आएंगे अपने घर में, ऐसा नहीं होता जी। ठीक है, तो आप वो टेक्नोलॉजीज, वो प्रोसेसेस अडॉप्ट करेंगे जो कि आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए रेलेवेंट है। आप सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते। ठीक है, सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, चूज ही होना है। कोई कोई लड़ाई लड़नी है, किसी किसी फ्रंट पे ना अंगेज होना है, जहां आपको लगता है कि यहाँ ये आपका फ्रंट है, यहाँ आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेसर होने का और कम्युनिटी कम्युनिकेटर होने का ये चैलेंज भी है कि बंदा बोलता बड़ा ज्यादा है। दोबारा जी जोम हमें बता रहा है कि टाइम खत्म होने वाला है। ये जैसा वो कहते हैं ना कि शायर ने कहा कि घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी है जी। गाफिल घड़ियाल ये देता है मुनादी, है जी, घड़ी साज ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं घड़ियालों को, कि गाफिल घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो सर ये जूम भी हमें दस रहा है कि जरा 10 मिनट बाद दोबारा भाईजान आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला इसी लिंक को यूज करके। तो सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल जी, और ये हमारे जो टूल्स हैं उन्हें पार भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ले सर आगे बढ़ते हैं और जोरों शोर से आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे सियासतदान बढ़ते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं जी। तो नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं जी, और डिजिटल लेंस के जरिए दुनिया को देखते हैं हम। क्योंकि हमें एक जनरल रूल बताया जा रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? कि आज के लीडर्स को, यंग लीडर्स को कम से कम 30% कॉम्पिटेंसीज टेक्नोलॉजीज में सीखनी है। ठीक है जी, आपको ये नहीं कि आपसे हर बंदे से हम प्रोग्राम ही लिखवाएंगे तभी हम उसे कहेंगे कि इसका डिजिटल माइंडसेट है, ये पाइथन का 1000 लाइनों का कोड लिखेगा ही तो, ठीक है जी, ये एक्सपर्ट होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
और इसकी फिर इम्प्लीकेशंस क्या है आपकी टीम के लिए। ठीक है जी, तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो फिर आप अपने मोबाइल फोन को, अपने लैपटॉप को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो भी आप सोशल मीडिया या और डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सर मुझे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को मैंने यूं अडॉप्ट किया है, यूं यूज किया है, इससे मेरी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो गई है, हम अपने कस्टमर की नीड्स को अच्छे तरीके से वो एड्रेस कर पा रहे हैं। नहीं जी, दोबारा कनेक्शन आ गया जी। तो कनेक्शन में सिर्फ इतना है कि आप अपनी अपनी अवेयरनेस खुद चेक करें कि किस टॉपिक के बारे में ये मिस हांदा पढ़ रही हैं, आजकल देख रही हैं, मिस सोनिया का नाम नजर आ रहा है मुझे। तो ये आप लोगों ने अपना अपना डिसाइड करना है कि आजकल आप में से कौन रोबोटिक्स से अपने आप को सेंसिटाइज कर रहा है और कौन क्वांटम कंप्यूटिंग का स्टूडेंट है। तो ये ज़रूर इस सवाल का जवाब बाद में ज़रूर ढूंढिएगा, ये सवाल अपने आप से कीजिएगा। नहीं जी, दोबारा एक्टिविटी आ गई, लेकिन बहरहाल इस एक्टिविटी का तो हिस्सा नहीं हम बनेंगे। हम सिर्फ इस एक्टिविटी को जो देख लेते हैं कि क्या सवाल है, और टिप दी जा रही है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अपनी टीम से, अपने लोगों से बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने घर में बात करें, अपने बच्चों में बात करें। हम संजीदा मौजू पे बात ही नहीं करते। क्वांटम कंप्यूटिंग पे, ब्लॉकचेन पे, आईओटी पे, रोबोटिक्स में, हम अपने घरों में इन मौजूआत पे भी हम कपड़ों पे ही बातें करते रह जाते हैं। यहाँ टिंडे क्या पकाने हैं, बताऊं खाने हैं कि नहीं खाने हैं जी, हम इसी में फंसे हुए हैं। बहरहाल आज के माँ बाप को, आज के साथी को, आज के बड़े बहन भाइयों को चाहिए कि वो अपने छोटों के साथ इन हॉट टॉपिक्स पे बात करें। जैसे चलें, मैं अल्लाह की ज़ात का मशकूर हूँ कि मुझे इन टॉपिक्स पे आपसे बात करने का कुछ मौका मिल रहा है। लो जी, सेक्शन और मुक गया है, मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसका टेक अवे है। ये वो बातें हैं जो हमने कुछ देर में यहाँ की, अभी अपने पिछले सेक्शन में। तो स्टिल मैं घड़ी देख रहा हूँ, ये घड़ियाल मुझे कह रहा है कि 5 मिनट हैं अभी साजिद तुम्हारे पास लगभग। तो हम आगे अगले सेक्शन को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ मैं ये रीआइट्रेट कर देता हूँ दोबारा कि जी जैसे ही अगर डिस्कनेक्ट होगा तो इसी जूम के लिंक को यूज़ करके महमूद साहब और बाकी जी जो कोलीग्स हैं, हम दोबारा अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो ले जी सर, अगला जो सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, तो हम तकरीबन 50% टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये सेक्शन मुकम्मल करेंगे तो हमारी गुफ्तगू का तकरीबन 75% हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह आपका भला करे। मैं आपका दोबारा मशकूर हूँ जी के आप इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो हम अभी इस चीज़ को लेकर अपने सफ़र को जारी रखते हैं कि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डेटा को कहा था, क्या था, डेटा और नवा ऑयल है। एक अरबों के पास तेल का हथियार है जो उन्होंने 1973 में आजमाया। 3 महीने के लिए पेट्रोल बंद कर दिया अमेरिका का, है जी, यूरोप का, तो बड़े परेशान हुए। तो इसी तरह आज का नवा डेटा जो है, ऑयल, वो डेटा है। ले सर, अपनी डेटा लिटरेसी को बढ़ाएं, पहला बात ये की जा रही है। मुझे और आपको ये पैगाम दिया जा रहा है
कि आपकी टीम और आप जो डेटा आ रहा है उसे समझें और डेटा लिटरेट हों। डेटा लिटरेट होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको किस तरह की और इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से। और जो गलत किस्म का डेटा है, नामुकम्मल, अधूरा, गलत डेटा है, उससे आप बच सकेंगे, आपकी टीम बच सकेगी, आप बच सकेंगे। और डिसीजन मेकिंग आपकी इंफॉर्म्ड और स्मार्ट होएगी और इनोवेशन होगी और कस्टमर की नीड्स को आप सर्व करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोल है जी यहाँ पे। तो ये आप और आपकी टीम और आप जवाब दें हैं कि आप अपने डिसीजंस के लिए वाकई ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेटा लिटरेसी को बढ़ाएं, इस पे काम करें, इस पे बात करें और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। आपको पता हो कि हमारा जो डेटा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या वो सही है या नहीं। तो ये सारे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं, इनके जवाब आपने ढूंढने हैं। लीजिए तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा वक्त है, तो दोबारा इस लिंक को हम यूज़ करके आ जाएंगे ऑनलाइन। तो सर यहाँ एक दोबारा ट्रिविया आ गया कि इतना ज़्यादा डेटा हर रोज़ पैदा हो रहा है। देखिए ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल है, मैं चले आर्टिकल को, ये सिर्फ सन 2020 में पब्लिश हुआ। तो उसमें वो बताया गया कि सर इतना डेटा रोजाना पैदा हो रहा है, तो अब अंदाजा करें कि इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। अच्छा सर, तो ये दोबारा मेक का प्लान है, तो ये प्लान तो सर आपने प्लानिंग करनी है और प्लान बनाना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जी 1 मिनट से कम वक्त है, तो अगर डिस्कनेक्ट होगा तो हम दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे। तो डेटा जो है आपकी टीम जनरेट कर रही है, आपके कस्टमर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और दो तरह का डेटा है। ये एक स्टैंडर्ड बात है, आपको, मुझे, हम सबको पता है कि डेटा क्वांटिटेटिव भी होता है और डेटा क्वालिटेटिव भी होता है। ये तो स्टैंडर्ड क्या कहना चाहिए, डिजिटल 101 वाली बातें हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव में जा रहा है हाउ मैनी, हाउ मच, हु, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है, नंबर्स के साथ, फिगर के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, वाई है जी, वाई वाला क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढा जाता है। तो ये जरा ये क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास यूं आता है। लीजिए सर, हम अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपने मुकालमे को आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो बात हो रही थी जी डेटा की। दो तरह का डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। तो आपकी जो टीम है उसके लिए कुछ एग्जांपल शेयर की जा रही है, इस तरह का डेटा रेलेवेंट है। उसमें पहला कस्टमर इनपुट आती है जी। ये जो कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स हमें डेटा दे रहे होते हैं। उसके अलावा यूजेज डेटा, कि जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो टूल्स भी तो डेटा जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा एक एग्जांपल कोट की जा रही है, मार्केटिंग, मार्केट एनालिटिक्स, ठीक है। तो मार्केट में भी तो एक डेटा है कि मार्केट में कौन क्या बेच रहा है, किस मार्केट में और किस कीमत पर। तो ये अच्छी एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि मुख्तलिफ तरह का डेटा हमें अवेलेबल होता है और ये डेटा हमें हासिल करना है और अपनी टीम के साथ बैठकर फिर उस डेटा से मीनिंगफुल इंटरेक्शन करनी है। अच्छा साहब, डेटा को इंटेंशनली यूज करें, ठीक है, ताकि वो डेटा, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपकी टीम को कामयाब बनाए, ठीक है।
मिसलीडिंग या बायस डेटा नहीं यूज करना। तो यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम डेटा को फिर कैसे अपने डिसीजंस के लिए इंटरप्रेट करें। तो उसमें बताया, सजेशन दी जा रही है कि तीन एज हैं। इन्फोग्राफिक भी मिलकर हम देखते हैं। तो उसमें तीन एज में पहला ए क्या है, एक्सेस। दूसरा है एक्यूरेसी। और थर्ड है एनालिसिस। तो ले आए मिलकर ये इन्फोग्राफिक देखते हैं और इसे समझते हैं कि ये डेटा के तीन एज क्या हैं जी। नहीं सर, हमने इन तीनों चीजों को देखा कि डेटा के तीन एज क्या हैं। ले सर, इसे थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। एक्सेस, हाउ योर टीम विल आइडेंटिफाई एंड फाइंड डेटा रेलेवेंट टू योर प्रोजेक्ट्स। पहले एक्सेसिबिलिटी है, ये डेटा आएगा कहाँ से। अगला बड़ा सवाल जिसका जवाब ढूंढना है आपने, आपकी टीम ने मिलकर, एक्यूरेसी। ये जो डेटा है ये वाकई एक्यूरेट है या नहीं, ये वैलिड है, इसकी वैलिडिटी है। और फिर तीसरा एनालिसिस, कि आप इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और उस पर एक्ट करेंगे। ये तीनों सवाल बड़े अहम। ये तीनों डायमेंशंस को आप कवर करेंगे तो एक मुकम्मल तस्वीर बने। एक्सेस द डेटा यू नीड। तो व्हाट कैन यू एंड योर टीम डू टू फाइंड एंड एक्सेस द डेटा यू। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बताई जा रही है कि आप और आपकी टीम मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम इस वक्त हमें सॉल्व करनी है, उनके लिए डेटा कहाँ से आएगा। और या तो आप खुद मिलकर आपकी टीम वो काम करेंगे या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट हायर करेंगे। तो लेकिन बाहर आपका और आपकी टीम का काम ये है कि मिलकर ये क्वेश्चन जरूर ड्राफ्ट करें कि हमारे क्या बिजनेस चैलेंजेस हैं, ज़रूरियात क्या हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरियात को आप बेहतर समझते हैं। वो बाहर से आके कोई फॉरेनर नहीं बताएगा कि भाईजान आपके ये मसले हैं, आपके मसलों का आपको पता होगा। आप बताएंगे मुझे नज़ला जुकाम है, जो बाहर का एक्सपर्ट है वो ये बता लेगा भाईजान आप इतनी पौंड स्टान खा लें। ठीक है, अपने मसले आइडेंटिफाई आप नहीं करने और अल्टीमेटली हल भी आप नहीं करने। एक्सपर्ट तो बददासी देगा ना कि भाईजान पौंड स्टान खा लो, वो खानी तो तुसी है ना। तो बहरहाल बड़ा अच्छा जी, इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। ले सर, एक्सेस द डेटा यू नीड में दोबारा इसी पैराडाइम में कि अ, अगर डेटा आपको खुद इकट्ठा करना पड़े तो उसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस बताई जा रही हैं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी टीम में कौन लोग किस तरह का डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अरे तभी बात बनेगी ना कि कौन लोग क्वालिटेटिव डेटा कौन जमा करेगा, क्वांटिटेटिव कौन जमा करेगा, किस सवाल के जवाब किसके पास होंगे। ठीक है? एक ही बंदे के पास सारे सवालों के जवाब नहीं होते। ठीक है, एक घर में चचा, अब्बू जी या खाला कोई सारा कुछ नहीं पता होता। मुख्तलिफ खालाओं को मुख्तलिफ चीज़ों का पता होता है ज्यादा। अच्छा जी, टेलर कलेक्शन मेथड्स टू मीट योर टाइम एंड रिसोर्सेज। फिर आप अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपने वक्त और रिसोर्सेज के मुताबिक, जरा टाइम इज़ मनी जी, तो वो आप फैसला करेंगे कि कौन से कलेक्शन मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की जाए। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप आज माशाल्लाह अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन के बारे में अपने आप को और अपनी टीम को ट्रेन करें। यहाँ एक टूल है जी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मे अहमद भी आ गई हैं जी। देखिए 23 मार्च को भी माशाल्लाह उम्मे अहमद एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग काम कर रहे हैं वो 23 मार्च वाले दिन भी काम कर रहे हैं। उनका 24 घंटे का दिन नहीं, उनका 48 घंटे का है।
अच्छी बात। ले जी, ये सरफेस द डेटा यू नीड। ठीक है, ये टूल किट, ये जॉब एड आपसे शेयर कर देंगे। मैं सारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो होस्ट हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई है, कि उन्होंने आपसे सर्टिफिकेट शेयर करना है, कंटेंट अल्टीमेटली शेयर करना है, और उसमें ज़रा ये टूल किट से जॉब एड्स आप तक पहुंच जाएंगी, उनके तवसत से, उनके राउट से। ले सर, बहुत बड़ा सवाल है जी कि क्या आपका डेटा एक्यूरेट है, क्योंकि जो छोटे छोटे एरर्स हैं उनके फिर बड़े नताइज होते हैं। ठीक है, तो बड़े नतीजों का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है? इनएफिशिएंसी। दूसरा बड़ा नतीजा निकलता है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आप सोचते हैं आप बेटे का रिश्ता लेके फलां घर जाएंगे, आप पहुंचते हैं तो वो घर वाले बताते हैं हमारी बेटी का तो परसों ही हमने बात तय कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो डेट बिकम है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह मिसट्रस्ट, तो मिसट्रस्ट तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। और हमारी प्रोडक्टिविटी भी, जाहिर है, एशिया में देखें, साउथ एशिया में देखें, तो हमसे तो हमारे बंगाली भाई और अफगानी भी आगे निकल गए। ठीक है, तो एक और टूल किट है जी, वो आपसे हम शेयर कर देंगे। जैसे मैंने कहा, मिस सारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपने इंश्योर करना है कि डेटा करेक्ट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, यूनिक और टाइमली है। तो एक वीडियो जी दोबारा इन्फोग्राफिक आ गई है, आइए मिलकर देखते हैं। ठीक है जी, ये वीडियो हमने मिलकर देखी, और ये वो सवाल हैं जो कि हमारे डेटा की एक्यूरेसी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, और फिर हमारे एनालिसिस को एतबार देते हैं जी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, एनालिसिस करना है और एक्ट करना है अपने डेटा पे। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना, एक्शन पे फोकस रखना, अपनी assumptions को चेक करते रहना। ठीक है जी, और जो प्रेजेंटेशन की जो ताकत है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो कि सर, अच्छा ये पीछे चला गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक और टूल किट है जी, जॉब एड है, हाउ टू एनालाइज योर डेटा, ये भी आपसे हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कि आप इसे यूज कर सकें अपने जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी इंडस्ट्री में आपको दरपेश हैं, उन्हें आप एड्रेस कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने एक और सेक्शन मुकम्मल कर लिया, ऑलमोस्ट 75% हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का मुकम्मल हो गया। मैं यहाँ आप लोग की तवज्जो का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोग इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ शामिल हैं। लें जी, आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, और वो है कि जो डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन्हें आप ग्रैब कैसे करोगे। ठीक है जी, एक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी डिजिटल अपॉर्चुनिटी आएंगी वो आपकी टीम के लिए, ग्रुप के लिए एक दरवाज़ा खोलेंगी। ठीक है जी, वो दरवाज़ा, वो खिड़की नमूदार होगी, तो उस खिड़की को आपने, उस दरवाजे को नॉक करना है और उसमें एंटर होना है। ठीक है, इसमें ये कोटेशन मुझे अच्छी लगी, मज़ाहिया मीम है। ठीक है जी, कि हमसे ये गलती हो जाती है कि जो इस कोटेशन में जिस तरफ, इस मीम में जिस तरफ इशारा किया गया, तो कोशिश करें कि जितना इस गलती से बच सकें। अच्छा, डिजिटल माइंडसेट है क्या? दोबारा उस तरफ इशारा हो रहा है कि ये जाहिर है हमें इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
के मौके प्रोवाइड करती है जी। ये सारा माइंड सेट, ये टेक्नोलॉजीज। और टिप ये दी जा रही है, बताया, ये इस बात की याद दहानी हो रही है कि ये मत समझें कि टेक्नोलॉजी आपके सारे मसले हल कर देगी। टेक्नोलॉजी ने आपके सारे मसले हल नहीं करने। अपने मसले, बल्कि हमने अपने मसले जो अमूमन हमने पैदा किए ही होते हैं, हमने ही खुद ही हल करना है। हमारे पैदा किए हुए मसले टेक्नोलॉजी आके या किसी और ने आके हल नहीं करने। अच्छा सर, जो इनिशिएटिव ओवरलोड है उसका भी शिकार ना हो, कि आपको लगता है कि आप हर काम कर सकते हैं, आपको हर काम कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, आप सारे काम नहीं कर सकते। आपको सारे काम नहीं करने चाहिए। आपको सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जिन्हें आप अहम समझते हैं, जो आपके ख्याल में अहम है। ये अजान हो रही है मेरी लोकेलिटी में, जरा अजान सुन लेते हैं। नहीं सर, प्रायोरिटाइजेशन की बात हो रही है। टाइम मैनेजमेंट में, प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं कि प्रायोरिटाइज करें। जो हाई प्रायोरिटी के काम है वो कीजिए, लो प्रायोरिटी के काम या तो दूसरों को करने के लिए दे दीजिए, कोई बंदा रखें जो वो काम करे, या वो काम खत्म ही कर दें। बल आपको हाई प्रायोरिटी के काम करने हैं, लो प्रायोरिटी के काम नहीं करने। अगर आप ड्राइवर रख सकते हैं तो ड्राइवर रख लें, कभी कभी खुद ड्राइव कर लें, लेकिन लॉन्ग रूट पे ड्राइवर ही चलाए। तो बहरहाल ये हुई मैट्रिक्स है, लो प्रायोरिटी, मे बी, डेलीगेट, गुड बैड। तो सीधी बात है, लो प्रायोरिटी वाले काम नहीं करने, मे बी वाले शायद, इधर जो लो कॉम्प्लेक्सिटी है और लिटिल पे ऑफ है, ये भी लोगों को दे दें। बिग पे ऑफ और लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो काम हैं वो आपको करने हैं, मुझे करने हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स को हम दोबारा देख रहे हैं कि इसमें ये जो चीजें हैं बताई गई हैं कि इस प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स को यूज कीजिए और मिलकर एज ए टीम सपोर्ट, अपनी टीम के साथ मिलकर तय कीजिए कि हम क्या करें। ठीक है जी। हम ये सारे काम कर सकते हैं, ये चारों काम कर सकते हैं, लेकिन हम चारों काम नहीं करेंगे, एक काम खुद करेंगे, बाकी चीजों को हम अपनी प्लेट से निकाल देंगे। सारी फकियां नहीं खानी, सारी मछलियां नहीं फाड़ लेनी। ओके सर, टेस्ट एंड लर्न, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें अपने टीम के साथ मिलके। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, बड़ा जनरेटर बनाऊंगा, तो भाई बड़े जनरेटर की फंडिंग अब्बा जी से लेकर आएंगे। अब्बा जी फंड नहीं करेंगे, कोई हुकूमत, कोई इदारा फंड नहीं करेगा। तो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर या छोटा सा जनरेटर बना लें। वो आप अपनी जेब से भी शायद कर लें, अपने जेब हट से जो अब्बा जी ही देते हैं, या हो सकता है अब्बा जी भी कह दें चलो पुत्र जी छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो। तो दोबारा कोटेशन आ गई जी। और कोटेशन मुझे ये बड़ी मजेदार लगी कि आज की जो नई दुनिया है ना, इसमें ये वाली बात अब पुरानी हो गई। वो क्या पुरानी बात थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी। ए 20 साल पुरानी बात हो गई। आज जो तेज मच्छी है वो स्लो मच्छी को खा जाएगी। ठीक है जी। सो फास्ट फिश विल ईट द स्लो फिश। ठीक है जी। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खाती है, ये दादाबू के दौर में हकीकत थी, आज भी होगी। लेकिन आजकल ज्यादा मसला ये हो गया है कि मच्छियां सारी बराबर हो गई हैं, बड़ी छोटी। अब तेज मच्छी
स्लो फिश को खा जाएगी। तो ये आज के दौर की हकीकत है। आज के इंसान को इसका इदराक करना लाजिम है, नहीं तो वो दादा अबू का ही तराना पड़ता हुआ रहेगा कि बड़ी मच्छी जो है ना वो छोटी मछली को खाती है। सो कम अप विद हाइपोथेसिस अबाउट योर इनिशिएटिव, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर क्विक और टारगेटेड एक्शंस करना बड़ा जरूरी है, और जो आपको रिजल्ट्स मिले उनको एवेल्युएट करना और उनके मुताबिक तब्दीली लाना, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास वसाइल कम है आपकी टीम के पास, तो उसके बारे में भी जो है वो मशवरा दिया जा रहा है कि प्रायोरिटाइज करें और फिर आगे भी बढ़ें। आपके जो मेट्रिसेस हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए, परफॉर्मेंस गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है आपकी इंडस्ट्री में उसके मुताबिक वो वेरी करेंगे। ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करें वो पर्पसफुल, टारगेटेड और फोकस होनी चाहिए। लें जी, मिलकर एक इन्फोग्राफिक एक वीडियो देखते हैं। नहीं सर, ये आज के वक्त की हकीकतें हैं कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन करनी है पर्पसफुल होकर, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और इवन ये है, अच्छी सजेशन दी जा रही है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए तो ये याद रखें कि आपने इनोवेशन करने की कोशिश की थी, नेक नियति के साथ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हुई थी, तो आखिर पे क्या हुआ, सिर्फ लर्निंग हुई है। ठीक है, तो इनोवेशन है ही, घूमती ही लर्निंग के अराउंड है। तो दोबारा ये जो एक्टिविटी है ये ज़ाहिर है मैं आपसे स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपना ये वाला सेक्शन भी मुकम्मल कर लिया, और ये मेरे रेफरेंसेस हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंटेलिजेंस इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैं यहाँ पर अल्लाह की ज़ात का सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ, उसके बाद आप लोगों की तवज्जो का भी, कि आप लोग सुबह से मेरे साथ एंगेज हैं, और इस ट्रेनिंग की, इस वेबिनार की, की सारी खूबसूरती वो आप लोगों की वजह से ही है। तो यहाँ सर अब फ्लोर ओपन है, आपका कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्वेरी, तो यू आर वेलकम। बड़ा अच्छा लगा मुझे 23 मार्च के दिन इस संजीदा मौजू पर बात करना जी आप लोगों के साथ। और मैं एनसीबीए की टीम का, मिस सारा का स्पेशली, और डॉक्टर अली साजिद का, बाकी भी जो असहाब जिनके नाम मुझे नहीं आते उन सबका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इस तारीखी दिन पे, ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का महीना और 23 मार्च 1940 हम पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत का दिन है, उसमें हमें इस संजीदा मौजू पर बात करने की अपॉर्चुनिटी दी। और हमने देखा कि डिजिटल इंटेलिजेंस क्या है, ये हमारे सब टॉपिक्स थे। डिजिटल माइंडसेट हम कैसे बनाएं, कि जो हमारा एनालॉग माइंडसेट है उसे डिजिटल बनाएं कैसे, डेटा कहाँ से हासिल करें और कैसे उस डेटा से इंफॉर्मेशन हासिल करें, और फिर जब डिजिटल अपॉर्चुनिटीज कहीं नजर आए तो फिर हम अमल करें, एक्शन पैरालिसिस का शिकार ना हो, बल्कि हम बाअमल हो, उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं। तो मैं आपकी तवज्जो का, आपकी शफकत का बड़ा मशहूर हूँ जी। यहाँ एहतताम पे मैं एक दफ़ा फिर चैट बॉक्स में जी, आ, मैं बल्कि आज लिखता हूँ, मन में कहता हूँ सिर्फ, लेकिन कहते हैं लिखना भी चाहिए। लिखे हुए हर्फ की भी अपनी ही एक अहमियत है। मैं जी आप लोगों का सबका बड़ा मशहूर हूँ इस हॉट और सीरियस टॉपिक पे। आपने छुट्टी वाले दिन मेरे साथ एंगेज हुए,
और आपने ये फैसला किया कि आप ड्राइवर सीट पे बैठेंगे। आप ये नहीं कि ड्रिवन होंगे टेक्नोलॉजी से, और आप लोगों को बताएंगे कि यार टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन्हें कैसे यूज़ करें, कैसे अडॉप्ट करें, और कैसे प्रोडक्टिव हों। और ना कि ये कोई होर आके तानू दसे कि भाईजान जाग जाओ, उठो और टेक्नोलॉजी यूज़ करो। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। तो बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, आपकी शिरकत का। अस्सलाम वालेकुम।